ایوان کی طرف سے اور کمیونٹی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بزی اسکیڈول میں سے کمیونٹی کے لیے خصوصی وقت نکالا. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے. اس کے بعد میں قائم مقام سفیر جناب امین ظہری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کے دفتر میں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد وزیر خارجہ صاحب آ کر اپنے خیالات کا اظہار کروائیں گے اور ان سب کے بعد سوال اور جواب کا ایک سلسلہ ہے. تو تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں جناب شاہ خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے تقریب کا آغاز کریں. جناب شاہ خالد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. للذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اب میں گزارش کروں گا قائم مقام سفیر جناب امین ظہری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ویلکم ریمارکس دیں. امین ظہری صاحب. عزت مام وزیر خارجہ اسلامی جمہوریہ پاکستان مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب اور جاپان میں مقیم عزیز پاکستانی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم اور بہت بہت خوش آمدید سفارت خانے میں. مجھے بخوبی احساس ہے کہ آپ لوگ کافی دیر سے، میں تو یہاں 4 بجے جب آیا تو انتظامات دیکھنے کو سب بھی کچھ پاکستانی بھائی یہاں آئے ہوئے تھے کہ آپ وزیر خارجہ صاحب کو سننے کے لیے یہاں پر کافی دیر سے ہیں. صرف میں ایک بات کہوں گا، جس دن سے یہ حکومت آئی ہے فارن منسٹر صاحب، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ہدایت بیرون ملک پاکستانیوں کے بارے میں نہ ملتی ہو تو ان کا خیال رکھا جائے. اور یہ جو ملاقات اور تقریب ہے، یہ خصوصی ہدایات تھیں وزیر خارجہ صاحب کی. انہوں نے 1-2 میٹنگس کو اپنی چھوڑ کے اس کو کہا کہ یہ ضرور میں بات کروں گا پاکستانیوں سے. تو اس لیے وداؤٹ فردر اڈو سر، حضرت مآب وزیر خارجہ اسلامی جمہوریہ پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے زحمت گوارا کی اپنی مصروفیات کے باوجود وقت نکالا اور یہاں تشریف لایا. میری کوشش کی ہے، میری فرائض میں بھی شامل ہوتا ہے کہ جہاں بھی جائیں پاکستانی کمیونٹی سے بالمشافہت ملاقات کو چاہیے. اس کے بہت سے فوائد اور اسے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. نمبر 1، میں داری سے سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ملک کی معیشت کے لیے رکھتی ہے. آج جو ریسورسز پاکستان دی جا رہی ہیں وہ ہماری ایکسپورٹس سے زیادہ ہے. یعنی کہ ہر پاکستانی جو بیرون ملک رہ رہا ہے وہ پاکستان کی معیشت کو چلا رہا ہے اور وہ پاکستان کا سفیر بھی ہے. تو جہاں رہتا ہے، جس کمیونٹی میں رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، جس کاروبار سے منسلک ہے،
जिस प्रोफेशन से उसका ताल्लुक है वो वहाँ पाकिस्तान का एक सही उसका कॉन्डक्ट, उसका किरदार, उसका बिहेवियर, उसकी अप्रोच, उसका एटीट्यूड जो है वो पाकिस्तान पर रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। जिस तरह कोई सरकारी एहलकार, कोई सफारतकार, कोई वजीर जब बाहर आता है और वो अपना इंटरेक्ट करता है तो वो एक अच्छा इंप्रेशन भी छोड़ के जा सकता है और एक मंफी जो है वो फीलिंग जनरेट कर सकता है। तो मेरी ख्वाहिश है और रहेगी कि पाकिस्तानियों के साथ इंटरेक्ट किया जाए। बुनियादी तौर पर ये एम्बेसीज इसलिए है, इसका एक चीज तो है कि ये हमारे जो जिस मुल्क में हमारी एम्बेसी होती है वहाँ ताल्लुकात को फरोग दें, इंटरेक्शन बढ़ाएं होस्ट मुमलिकत के साथ। उसके साथ साथ इनका एक बुनियादी फर्ज है कि जो पाकिस्तानी उस मुल्क में रहते हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन बने, उनके लिए सहूलतकार बने, फैसिलिटेट करें, उनके लिए आसानियां पैदा करें। अगर उन्होंने ट्रेड करनी है आसानी पैदा करें, अगर उनके इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है फैसिलिटेट करें। ये जो एक पैकेज है जो हमें बनाना चाहिए और बनाने की कोशिश करती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक मैंने फजूल लिखे हर एम्बेसी को लिखा और मैंने कहा दरखास्त की कि देखिए जो पाकिस्तानी बात रहती है जो भी एम्बेसी आती है ठीक है तो बड़ी लवाजमात की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें इज्जत दीजिए और इज्जत से पेश आइए और उस पर कोई खर्चा दरकार नहीं। इसकी कर्टेसी भी करो, उनको और कुछ नहीं ठंडा पानी पिला दें, एक बैठने की खुशी मुहैया कर दें और वो ज़्यादा मांगते भी नहीं है। वो तो आते हैं फिर उनका मसला होता है ताकि जल्द अज जल्द हल हो जाए और वो चले जाए। लोगों को क्या टाइम कहाँ होता है लोगों के पास, तो उनको फैसिलिटेट करें। कागजात की रजिस्ट्रेशन होती है और जहाँ उसमें मामला होती है तो उनकी मददगार और मामूल करें। ये हमारी तरजीह है, ये हमारी हुकूमत की अव्वलीन कोशिश है कि वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का अलम उठाते हैं तैयार गैर में, वो हमारा असासा है और उसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान के हालात का ताल्लुक है, आप खबर है और दुनिया बदल चुकी है। अब तो पल पल की खबर जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो ये लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वगैरह पाकिस्तान हर शहर में जाती है। सोशल मीडिया ने दुनिया को सपोर्ट कर दिया है और हमें फौरन पहुंचती है। श्रीलंका में कल एक तूफान बर्पा था, एक दहशतगर्दी की कैफियत थी और पल पल की खबर दुनिया को जा रही थी। ये है नई दुनिया और इस नई दुनिया में हमने रहना भी है, हमने गुजारा भी करना है और इस नई दुनिया में हमें पाकिस्तान की साख पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करना है। बदकिस्मती से आपका मुल्क बहुत खूबसूरत है, जबरदस्त मुल्क है, लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए 5 उंगलियां बराबर करनी होती, हर 5 में नहीं 5 के लोग होते हैं, लेकिन वाज़े अक्सरियत पाकिस्तानियों की अच्छे लोगों को होती है। हमारा इमेज मुनासिब नहीं बाहर, उसमें हमारी अपनी कुर्बानियां भी हैं। हमने अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी को उस तरीके से हम पुरवकार नहीं लाए जिस तरीके से हमें लाना चाहिए। हमारी इंगेजमेंट, हमारा इंटरेक्शन स्टाइल बेहतरीन रहा है और हमें पाकिस्तान को सेल करने में शायद हम उतने मौसर नहीं थे जितना कि हमें होना चाहिए। बदकिस्मती से पिछले 5 साल में तो 4.5 साल आपका वजीर खारजा ही नहीं था। अब वो आपका वकील है, वो आपका तर्जुमान है, उसने पाकिस्तान की पॉलिसीज को सेल करना है, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा में है, चाहे कैपिटल्स हैं दुनिया के, चाहे यूरोपियन यूनियन से इंगेज करना है, चाहे वॉशिंगटन से
انگیج کرنا ہے, افریقن یونین سے آپ نے بات کرنی ہے, تو کوئی ہوگا تو آپ مقدمہ لڑنے جاتے ہیں تو وکیل کھڑا کرتے ہیں, تو جس عدالت میں چاہے کیس آپ کا کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو, ایک بلیک اینڈ وائٹ اوپن شٹ کیس ہو, پھر بھی وکیل تو ہائر کرنا پڑتا ہے, کچھ لوازمات ہوتی ہیں, ان لوازمات کو پورا کرنا پڑتا ہے. 4.5 سال پچھلے 5 سالوں سے ہمارے پاس وکیل ہی نہیں تھا جو پاکستان کی اچھی ترجمانی کرتا. تو یہ خلا ہے, اور اس خلا کا فائدہ پڑوس نے اٹھایا. نام یہ بغیر میرا اشارہ سمجھ گئے کہ ایک 9/11 کے بعد دنیا نے ایک نئی کروٹ لی اور گلوبل سین پر دہشت گردی جو ہے وہ نمایاں طور پر اجاگر کی گئی. تو ہمارے پڑوسی ملک ہے جو ایک لیجیٹیمیٹ کنسرن اور ایک موومنٹ چل رہی تھی حق خود ارادیت کی مقبوضہ کشمیر میں, اس کو تشکیل دے دیا دہشت گردی کے ساتھ, اور افیکٹولی اس کو سیل کیا. اور پھر پاکستان میں بدقسمتی سے افغانستان کی صورتحال ایسی بگڑی, اس کے بعد ہمارے یہاں جس ایکسپیرینس ہم کو چاہ رہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو جانی اور مالی نقصان پاکستان کا ہوا وہ آپ جانتے ہیں دنیا کا. اب ہم خدا کر کے اس فیز سے باہر نکل رہے ہیں, اس کی حد تک نکل چکے ہیں, لیکن نکل چکے ہیں, اور اس میں پاکستانی قوم نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے, جانی قیمت ادا کی ہے, جانی قربانی کی ہے. اور آپ کا جو ٹرائبل بیلٹ تھا اس کو الحمدللہ رد الفساد اور دیگر آپریشن کے لیے کلینس کیا. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو علاقہ غیر سمجھا جاتے تھے, ممنوع علاقے تھے, وہ وہاں جاتا نہیں تھا, آج انہی علاقوں میں وزیر اعظم پاکستان جلسے کر رہے ہیں. اور بڑے بڑے آپ نے دیکھا پچھلے 3 ایجنسیز میں ان کے نمایاں قسم کے جلسے ہوئے. جلسہ تو سیکیور انوائرمنٹ مل سکتا ہے, کہ انسیکیور آپ کیوں آئیں گے, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں آئے, ان کو سنا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جنہوں نے نقل مکانی کی تھی وہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. آج وہاں سڑکیں بن رہی ہیں, جو عمارتیں جو اسکول برباد ہوئے تھے آج اس کو ریہیبلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں انفراسٹرکچر کو دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے. تو اس سے ایک واضح کہانی سامنے آئی, اور وہ واضح کہانی یہ ہے کہ پاکستان بدل رہا ہے, پاکستان بدل چکا ہے, اور اس کا ایک عملی جو مظاہرہ ہے وہ آپ نے 2018 میں دیکھا کہ پاکستانی قوم کو جب موقع ملا کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے ایک فیصلہ سنائے, تو انہوں نے نسبتاً ایک نئی جماعت جو ماضی میں جس کا کوئی سیاسی تجربہ نہ تھا, ماضی میں جسے گورننس نہیں کی تھی, اس جماعت کو انہوں نے انٹرینچ پارٹیز پر ترجیح دی. کیوں دی؟ اس لیے دی کہ وہ سمجھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان سب کو آزما لیا, ہم نے ان کو دیکھ لیا, اور آج ہم ایک نئی جماعت کو موقع دینا چاہتے ہیں. تبھی تحریک انصاف کو کامیابی ملی, اور آج تحریک انصاف نے نسبتاً ایک نئی جماعت ہے, نہ صرف مرکز میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں حکومت کو بنانی ہے, اور بلوچستان میں مخلوط حکومت کا حصہ ہے, اور سندھ میں بھی میں کہوں گا کسی حد تک پینیٹریشن ہماری ہوئی ہے. اور سندھ کے دارالخلافہ کراچی میں آج تحریک انصاف کو نمایاں کامیابی ملی ہے, اور آپ نے ریپلیس کیا ہے پیپلز پارٹی کو اربن سندھ میں. وہاں یا ایم کیو ایم تھی یا پیپلز پارٹی وہاں ہوا کرتی تھی, اور کچھ اسلامی جماعتیں مطلب ہے پاکستان ہوا کرتی تھی, پاکستان ہوا کرتی تھی. PTI has replaced it. تو یہ ہے ایک نیا سیاسی نقشہ جو ابھر رہا ہے پاکستان میں. آپ دل میں کہ جب ہم اقتدار میں آئے اور 20 اگست کو یہ قوم کی ذمہ داری ہمیں دی, تو پاکستان کی معاشی صورتحال کیا تھی. آج دن میں دیکھتا ہوں کہ پروگرام کے بڑے مذاکرے ہوتے ہیں, بڑے تذکرے ہوتے ہیں, اتنا معیشت کا بڑا فرق ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا.
सवाल ये है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये 7 माह में हुआ, 7 माह में तो तू करना चाहिए, तो कर सकता। वो कहते हैं किसी नई आमद के 9 माह का मतलब दरकार होते हैं, अभी हमारे 9 माह भी पूरे नहीं। आज सारा मलबा अगर वो उठाकर हमारे सामने रख दिया जाए, दैट इज अनफेयर। जमहूरियत की तनकीद सुनने का हौसला होना चाहिए, हम से घबराते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं घबराते, लेकिन बेजाने की भी मुनासिब नहीं है। पहले तो आप देखिए, छोड़िए मैं क्या कहता हूं, छोड़िए इमरान खान क्या कहते हैं, छोड़िए पीटीआई क्या कहती है, लेट्स लुक एट द इकोनॉमिस्ट ऑफ पाकिस्तान, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हफीज पाशा है और बहुत से नाम है, मैं किसका नाम लूं, सलमान शाह साहब है और कितने लोग हैं, मैं किसका नाम लूं, ऊपर जमा कीजिएगा, बताइए कि 20 अगस्त को जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत भारतीय वजूद में आई तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी? आई कैन से दैट विदाउट एनी फेयर कॉन्ट्रडिक्शन। सब यकसमा होकर कहेंगे कि जब ये हुकूमत आई तो उस वक्त पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट जो है वो 6.6% को जीडीपी था। वो सब यकसमा होकर कहेंगे जब ये हुकूमत भारतीय वजूद में आई तो पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो हिस्टोरिक नेचर का था। आपकी जो इंपोर्ट्स हैं ये फार एक्सीडेड जो एक्सपोर्ट्स। वो सब कहेंगे कि पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें डिप आ चुका था। वो सब कहेंगे कि इन 10 सालों में 2008 से लेकर 2018 तक जो 2 साबका जमातों को इक़्तिदार मिला और उन्होंने अपनी पॉलिसीज नाफिज की, पाकिस्तान वाज इंडेटेड एज नेवर बिफोर। 1947 से लेकर 2008 तक जितनी हुकूमतें आई उनका मवाज़ना कीजिए, तजिया कीजिए, तो पाकिस्तान मकरूज था 6000 ट्रिलियन का, और इन 10 सालों में पाकिस्तान मकरूज हो गया टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000 ट्रिलियन। ये 24,000 ट्रिलियन का जो डेट का इजाफा हुआ है, ये 7 माह में हुआ है, ये 8 माह में हुआ है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो डिप की है, ये 7 माह 8 माह की कारस्तानी है नहीं। That is the understanding. Pakistanis have realized कि सूरत हाल क्या है। अब इसको दुरुस्त करना है। इसको दुरुस्त करने के लिए कोई अमृत धारा, कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो कहता है क्विक फिक्स। इसका कायल नहीं, क्विक फिक्सेस। जो भी कौमें बनती हैं उसका कबल करना होता है। जापान आपके सामने है, जहां कहते हैं दूसरी जंगे अजीम के बाद क्या कैफियत थी, यूरोप की क्या कैफियत थी, खंडरात, दुश्मन, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, दस्तों के बाद, लेकिन उन्होंने एक नई कन्वर्ट की, अपनी पॉलिसी, अपनी सोच, अपनी क़यादत उन लोगों को मुंतखब किया। वो जो वॉर हीरो थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा बहुत कामयाबी से आपने कौम को लीड किया है। नाउ ब्रिटेन नीड्स अ न्यू लीडरशिप, और उन्होंने नए किस्म की लीडरशिप को मुंतखब किया। बिकॉज वॉर टाइम ब्रिटेन की जरूरियात और थी और पीस टाइम ब्रिटेन की जरूरियात और थी। इसी तरह आज पाकिस्तानी कौम को फैसला करना है कि मकरूज पाकिस्तान की जरूरियात क्या है। आज हमें देखना है कि अगर हमने एक मौसर खारजा पॉलिसी बनानी है, मिसाल के तौर पर मैं आपका वज़ीर खारजा और मैंने आपकी वकालत करनी है, चाहे अमेरिका में करूं, चाहे काबुल में करूं, चाहे दिल्ली में आके करूं, जहां भी करूं, क्या मैं पाकिस्तान के हालात से नाताल्लुक हो सकता हूं? अगर मेरे मुल्क की मशरत इस किस्म की हो कि मेरे घुटने टके हुए हों, तो मैं कितना मौसर होगा, मेरी आवाज में कितना वजन होगा, दुनिया मुझे कितनी तवज्जो से सुनेगी। ये सब अवामी है, हमें ध्यान करना होगा जब हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। और यहाँ हम सब पाकिस्तानी हैं,
میں یہاں کوئی تفریق پیدا کرنے نہیں آیا کہ یہ تحریک انصاف کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ مسلم لیگ کا ہے. یہاں ہم سب پاکستانی ہیں اور آپ پاکستان کے آپ نے وکالت میری نہیں کرنی، آپ نے وکالت پاکستان کی کرنی ہے. آپ نے وکالت تحریک انصاف کی نہیں کرنی. آپ کے ہاتھ میں یہاں جھنڈا پاکستان کا ہے اور پاکستان کی وکالت آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ حقائق کو سامنے رکھ کر پیش کریں گے. میں حقائق کو توڑ کے پیش کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ مہمانداری کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرے منہ میں کچھ ہوتے ہیں، لیکن جب گھر جائیں گے تو بات میں وزن نہیں تھا. تھنکنگ پیپل، ریشنل پیپل، اور آپ ان چیزوں کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں. آپ رائے قائم کرتے ہیں تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کی ضروریات کیا ہیں. پاکستان کی ضروریات خواتین و حضرات معاشی اصلاحات. یہ 16ویں مرتبہ آپ IMF کے سامنے گئے ہیں. For the first time, PTI government is going to the IMF. What about 15 times that you were in front of IMF before? اس میں پیپلز پارٹی کے اعتبار بھی آئے، مسلم لیگ کے اعتبار بھی آئے، جنرل مشرف کے اعتبار بھی آئے، اعجاز خان صاحب کے اعتبار بھی آئے. کیوں گئے؟ What were the challenges? The challenges were chronic. They are chronic and they have been consistent. There has been no change. Governments have come and governments have gone, but the economic challenges of Pakistan remain constant. Why do they remain constant? They remain constant because the political leadership of Pakistan did not have the political will to take decisions and difficult decisions. There are no easy answers left. We've exhausted them as a nation in the last 73 years. We've exhausted all our easy options. Today, none of them exist. But we'll have to take difficult decisions. آپ جو difficult فیصلے آپ کریں گے، ایک طبقہ چلائے گا. جب آپ مافیا کو ہٹالیں گے، جب آپ ایک ایسی کلاس کو، جو ریٹ سیکنگ کلاس ہے، ایک ایسی کلاس کو جو کہ گورنمنٹ پیٹرنیج پر تجارت کرتی ہے، جو گورنمنٹ پیٹرنیج پر انڈسٹریلائزیشن کرتی ہے، ان کو تکلیف تو ہوگی. ان کو مال بنانا ہے اور وہ پالیسیز ایسی بنوانا چاہیں گے جس سے آسانی سے مال بن جائے. تو جب ان کے راستے میں آپ دیوار کھڑی کرنا چاہیں گے، یہ نقص ہے. لیکن ایک لیڈرشپ جس کے اندر کلیئرٹی ہے، ویژن ہے اور جس کے اپنے ہاتھ صاف ہیں، اس کو کرنا نہیں چاہیے. اور میرا یہ موقف ہے اور اس موقف کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم میں یہی احساس میں آیا کہ اگر ہم نے وہی کرنا ہے جو ماضی میں ہوا تو پھر ہمارے آنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم نے وہ فیصلے کرنے ہیں اور ہمیں وہ فیصلے کرنے چاہیے تو کڑوے صحیح لیکن دورست کروں اور اس قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی طاقت عطا کر دی. اور انشاءاللہ ان فیصلوں سے ہمیں آپ نے مینڈیٹ جو دیا ہے 5 سال کا، ہماری یہ کوشش ہے اور ہونی چاہیے کہ 5 سالوں میں ہم ایسے اقدامات کر جائیں کہ جس سے ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھ جائیں اور پھر عوام فیصلہ کرے کہ اگلے انتخابات میں کس کو وہ مناسب سمجھتے ہیں اور کس کو ووٹ کے ذریعے وہ منتخب کرتے ہیں. ایز اے ڈیموکریٹ جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں کھلے دل سے اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے. آج ایک اچھی روایت پڑ گئی ہے اور اچھی روایت یہ ہے کہ آج ایک تیسری مرتبہ ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہو گیا from one government from 2008 to 2013 to the other government from 2017 to 2018 and to the third government from 2018 onwards. Now this is a healthy change. آج کوئی نہیں کہتا کہ جمہوریت کا کوئی متبادل بھی ہے. جمہوریت میں قباہے بھی ہوں گی. It's noisy, it's slow moving. And this is the most accepted norm in the world. اور اس کے تقاضوں کو اگر آپ نے کمیونٹی آف نیشنز میں اپنا مقام اور عزت بنانی ہے تو ایک ہی راستہ ہے، وہ جمہوری راستہ ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ آج قوم قبول نہیں کرے گی اور دنیا قبول نہیں کرے گی.
अछूत हो जाएंगे आप दुनिया में। इसलिए हमें इस रास्ते पर कदम भी करना भी है और मुल्क में ऐसी इस्लाहात लानी है जिससे क्या हो, माशी फैसले ऐसे हो जो वक्ती तौर पर कड़वे जरूर हो, लेकिन जिससे पाकिस्तान एक मुतवाज़िन ग्रोथ की तरफ जाए, जिससे पाकिस्तान का जो पिसा हुआ तबका है, जो गुर्बत की लकीर के नीचे एक तिहाई आपकी आबादी रहती है, वो गुर्बत की लकीर से ऊपर आ सके। पॉवर्टी एलिवेशन जिसका मकसद हो, जिसका मकसद हो मुल्क में सरमायाकारी हो और सरमायाकारी से रोजगार के मौके पैदा हो, जिसका मकसद मुल्क की माशी तरक्की हो, जिसका मकसद मुल्क में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो, इंडस्ट्रियल बेस आपका बढ़े, आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो में बेहतरी आए और आप आगे बढ़े, जिसका मकसद पाकिस्तान में गवर्नेंस के नए तौर तरीके अपनाए जाए और पाकिस्तान में करप्शन का कदार किया जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि आज अगर हमने इस ब्लैक होल जो हमारा है ना, बॉटमलेस पिट, गरीब आदमी इस मुल्क का टैक्स देते देते उसका कचूमर निकल गया, क्योंकि बल्क ऑफ योर टैक्सेस आर इनडायरेक्ट टैक्सेस और इसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं इम्प्लिसिट टैक्सेस। तो आम आदमी पर मुतवस्सित तबके पर उसका ज्यादा बोल पड़ता है। डायरेक्ट टैक्सेस का बेस तो आपके सामने ही दिखता है। कितने लोग हैं पाकिस्तान में डायरेक्ट इनकम टैक्स देते हैं? आटे के नमक के बराबर, ताकि इस तबके को रिलीफ मिल सके और इनकी पर्चेसिंग पावर में इजाफा हो। जब उनकी पर्चेसिंग पावर में इजाफा होगा तो मईशत का पहिया चलेगा। जब लोगों को एतमाद होगा कि आज इस हुकूमत से जो पॉलिसी बनवाने जा रहा हूं तो मुझे किसी की ये गर्म नहीं करनी, तो इन्वेस्टर का एतमाद बहाल होगा। तो गवर्नेंस के तकाज़े आपके पूरे करने हैं और ये जो बॉटमलेस पिट है करप्शन का, इसका तदारुक करना है। और इसके लिए मैं कहता हूं, मैं परपरा कहता हूं और मैंने अपनी पार्टी में भी कहता हूं और आज भी कहता हूं, चाहे वो मेरी सभों में है या किसी और सभ में, उस तबके की पेश करनी होगी, उस तबके से इस मुल्क को नजात दिलवानी होगी। हमें अपनी सिविल सर्विस की सलाह करनी होगी। Over the years, we have seen today the cream of Pakistan is no longer joining the civil service of Pakistan. And they are the governments. They have to govern this country. The political leadership can make policies. Who will implement those policies? It's the civil service of Pakistan. और आज जो टॉप नॉच जो आपका जो यूनिवर्सिटी का बच्चा है वो सिविल सर्विस में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? सवाल ये है। और उसको वापस अट्रैक्ट कैसे करना है? तो that was civil service reforms, protection, constitutional protection, confidence, and doing away with political undue political interference. उससे जन्म देगा इंशाअल्लाह एक नया पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान में आपके मेरे बच्चों ने रहना है, या जिस पाकिस्तान से अगर आपके बच्चों ने नहीं रहना, आपके साथ एक जज्बाती लगाव है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आप और कुछ भी खुशियों मजलों में शामिल होने जाते हैं, तो उस पाकिस्तान को हमने दोबारा अपने पांव पर खड़ा करना है। ये हमारा एजेंडा है, ये हमारी पॉलिसी है, हमारा फोकस है पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज, और इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी तनाजुर में हमें देखना है कि हमने अपने खारजा उमूर को बेहतर किस तरह करना है, हमने पाकिस्तान के इमेज को बाहर की दुनिया में बेहतर कैसे करना है, हमने अपना तशख़्ख़ुस जो है एक इस्लामी फलाही मुमलिकत का तशख़्ख़ुस कैसे बरकरार रखना है, और उसके साथ साथ दुनिया के साथ इंगेज कैसे करना है। हम दुनिया से लाताल्लुक़ नहीं हो सकते। आज ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और दो ग्लोबल विलेज के तकाजे हैं। आज कुछ तकाजे हैं
जिनकी नेचर यूनिवर्सल है, हमने उन तकाजों के अंदर रहते हुए अपना मुकदमा पेश करना है और अपना मौक़िफ़ पेश करना है, जो कि आज हम कर रहे हैं। हम जब आए आपने देखा कि खित्ते के अंदर हमारे ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो चुका था। सऊदी अरब जो हमारा दरीना दोस्त था, हमसे मुख्तलिफ हो चुका था। आज अल्लाह के फज़ल से हमने इन 7 माह के अंदर उसी सऊदी अरब का एतमाद बहाल किया है, ताल्लुकात को एक नई शक्ल दी है, वज़ीर आज़म ने 2 दौरे किए हैं और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तशरीफ लाए हैं और $20 अरब के MOU साइन करके गए। क्योंकि क्या आज बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहता है और उसकी रेमिटेंसेस से मुल्क चलता है। आज GCC ममालिक आप देखें तो हैं, उसमें आपके ताल्लुकात UAE के साथ और मुख्य मुल्कों के साथ एक खटाई का शिकार थे। यमन की जो जंग थी उसके असरात पड़े और आपकी जो पोजिशन थी, लेकिन हमने उनको बहाल किया गया और आज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद तशरीफ आते हैं और नई उम्मीद का दिया जलाकर जाते हैं। कतर के अमीर से भी हम मिलकर आए हैं और वो जो पाकिस्तान के बारे में तासुरात रखते हैं वो बड़ी मुस्बत। ईरान जिन ममालिक के साथ एक अपने ताल्लुकात की कशीदगी है, लेकिन पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। आज आपके वज़ीर आज़म इस वक्त तेहरान में ईरान के सदर और उनके जो दीनी रहनुमा हैं उनसे मिलने का इरादा रखते हैं और ईरान के साथ ताल्लुकात को एक नई वसअत और ईरान के बॉर्डर को बॉर्डर ऑफ पीस बनाने की हम ख्वाहिश रखते हैं। चीन जो आपका एक पुराना तरीना दोस्त था और है, उसके साथ हमने अपने ताल्लुकात को और वसअत दी है और सीपेक जो कि उसका पहला मरला अब वजीर है, तो हमने इस गवर्नमेंट में इन 7 महीनों के अंदर सीपैक फेज 2 का एक कामयाब एक वायदा चीन के साथ कर लिया है और इंशाअल्लाह 25 तारीख को यहाँ से टोक्यो से मैं बीजिंग जाऊंगा और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह जो बेल्ट रोड फोरम है उसमें पाकिस्तान को नुमायां जगह दी जाएगी और 38 ममालिक उसमें हिस्सा ले रहे हैं और आपके वज़ीर आज़म उनमें से की नोट स्पीकर होंगे। तो चीन जो आपकी एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थी, इन 7 माह में हमने उनको कायम किया है कि हम इस रिलेशनशिप को एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। चीन आज दुनिया की उभरती हुई इकॉनमी है, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड और अंदाजा है कि चंद सालों में इट माइट बिकम द लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। और खुशकिस्मती से वो आपका पड़ोसी भी है, खुशकिस्मती से वो अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है BRI का, उसका इंतखाब पाकिस्तान की नजर पड़ी है और आज उस पर अमल दरामद हो रहा है, which is the Islamic Corridor। और वैसे चाइना तो गवादर और अभी मैं वज़ीर आज़म के साथ था, हमने गवादर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बुनियाद रख दी है और इंशाल्लाह एक वहाँ डीप सी पोर्ट भी कायम हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है और इकोनॉमिक जोन भी बन रहा है, जिससे कि पाकिस्तान के रास्ते और सेंट्रल एशिया के रास्ते दुनिया से मिल जाएंगे, क्योंकि लैंड लॉक कंट्रीज को नया रास्ता मिलेगा और दुनिया का वादा। अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात में उतार चढ़ाव रहा, पिछली 7 दहाइयों का अगर आप मुताला करें तो उतार चढ़ाव रहा, लेकिन जब हम आए तो अमेरिका की इसी हुकूमत ने, इसी एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसको आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, अगस्त 2017 में एक नई पॉलिसी दी थी और साउथ एशिया पॉलिसी। उसमें उनके वो जो उनका जो नक्शा था उससे पाकिस्तान न मुतमईन था न कंफर्टेबल था।
آج اللہ کے فضل و کرم سے ان 7 ماہ میں ہم انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ وہ حکمت عملی نہیں چلے گی. اگر آپ امن اور استحکام افغانستان کو چاہتے ہیں، جو عمران خان اور تحریک انصاف اور ہم سال ہر سال کہتے آئے ہیں کہ آئیے مل کر ایک پولیٹیکل حل تلاش کریں، تو آج وہی امریکہ جو ایک زمانے میں عمران خان کو طالبان خان کا تانا دیتا تھا، آج دوحہ میں وہی امریکہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے. یہ ایک بہت ڈرامیٹک پالیسی شفٹ ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج یورپین یونین جو 28 ممالک کا ایک مجموعہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کہتے ہوئے اور آپ سے شیئر کرتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ جب موغرینی صاحبہ جو کہ ہائی ریپرزینٹیٹو ہیں یورپین یونین کی، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی اور وہ اسلام آباد آئی، مذاکرات ہوئے، تو آج میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ پاکستان اور یورپین یونین نے ایک نیا اسٹریٹجک انہانسمنٹ پلان طے کر لیا ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اگلے ماہ مئی میں انشاءاللہ میں برسلز جا کر اس پر معاہدے کا دستخط کروں گا اور ایک نیا ارینجمنٹ بٹوین پاکستان اینڈ یورپین یونین جو ہے وہ نقشے پر آ جائے گا. اور تقریباً 2.5 ملین پاکستانی ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا نیا رشتہ اور یورپ کے ساتھ ہمارا نیا رشتہ استوار. آج برطانیہ جو بریکسٹ کے فیصلے کے بعد یورپین یونین سے باہر جا رہا ہے، آج پاکستان ان سے انگیج کر رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ایک اور نوعیت دینا چاہتے ہیں. So that is how things are happening. That is how things are changing. اور اس میں ابھی آپ کی مدد کا کام ہے، ہمیں ہر پاکستانی کی مدد کا کام ہے کہ ٹوکیو کی ایمبیسی آپ کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہوگی. ایک سفیر کتنے لوگوں کو ملے گا؟ اگر یہاں تقریباً 15-20 ہزار کے لگ بھگ پاکستانی رہتے ہیں، is it possible to find all 20,000 of them over here? It's not possible. But ٹیکنالوجی میں رسائی پیدا کرتی ہے. آج میں سمجھتا ہوں، اور میں ابھی ان سے کہہ رہا تھا، I was meeting the officers of Pakistan embassy here, interact with the community. And now you have modern tools to interact with. Social media. Talk to them. Talk to the community. Hear what they have to say. لیکن وہ کڑوی باتیں کریں تو سن لو یار، کیا پڑتا ہے؟ سن لو، ہم پریشانی سے سنو. ہو سکتا ہے جسے کام کی باتیں نہیں ہیں، اس میں سے آپ کا فائدہ نکلے. اور پھر عمل پیرا کرو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، تو اس سے ملک کا بھی فائدہ ہوگا، کمیونٹی کا بھی فائدہ ہوگا. تو ایک نیا رشتہ بنانا ہے، ایک نیا رشتہ بنانا ہے کمیونٹی کے ساتھ، ایمبیسیز کو نیا رشتہ بنانا ہے. اور یہ واضح ہدایات ہیں ہماری طرف سے کہ آپ پرانا رویہ چھوڑیے، پرانی روش چھوڑیے اور نئے رشتے بنائیے. اس نئے رشتے بنانے کے لیے میں آج جاپان آیا ہوں. آپ کو یہ جان کر مسرت ہوگی کہ آج صبح میری بریکفاسٹ کی میٹنگ تھی، جس میں جاپان کی جو لیڈنگ کوآپریشنز ہیں ان کے نمائندگان اور ان کے تھنک ٹینکس اور ان کی ایکڈیمیا کے ساتھ میرا انٹریکشن تھا، اور بہت اچھی گفتگو ہوئی. انشاءاللہ کل میں آپ کے ملک کے وزیر خارجہ سے ملوں گا، اور میرے ذہن میں ایک پورا خاکہ ہے کہ میں کس طرح جاپان اور پاکستان کے تعلقات میں گہرائی اور وسعت دیکھنا چاہتا ہوں. جاپان کی گورنمنٹ کے اپنی نئے 3 پلرز کی وہ بات کر رہی ہے. ان 3 پلرز اور ان کی سوچ کو بربر کار لاتے ہوئے ہم نے کس طرح ایک ون ون سچویشن کریٹ کر دی ہے. تعلقات وہی چلتا ہے، اس کے دونوں اطراف فائدہ لگ رہا ہے. میاں بیوی بھی کبھی کٹھے رہتے ہیں جب گزارا صحیح ہو رہا ہوتا ہے. غلط کیا صحیح کیا. تو اس لیے ملک بھی دیکھتے ہیں کہ مجھے فائدہ کیا ہے. جاپان دیکھے گا یہ کرنے سے پاکستان کے ساتھ مجھے کیا فائدہ ہے، پاکستان دیکھے گا مجھے کیا فائدہ ہے. تو ہم انشاءاللہ ان کے سامنے ایسے پروپوزل رکھنا چاہتے ہیں اور ہیں
दिल से मैं वो कायम करूं कि ये कीजिए, इससे जापान को भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा और आपको फायदा होगा। ये न कीजिए, इससे आपके ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा होगा और हम पर मनफी असर पैदा होगा। तो ये है काम सफारतदारी का जो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करने आया हूँ। और इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो साबका वजीर आजम हैं इस मुल्क के, और इस वक्त वो इकोनॉमी पर महारत रखते हैं, उनका बड़ा वजन है, बड़ा एहतराम है इन दी बिजनेस कम्युनिटी जापान, उनके साथ भी मेरी नशिस्त है और उनसे भी इंशाल्लाह जो एक नया इकोनॉमिक अरेंजमेंट हम जापान के साथ करना चाहती हैं उसके बारे में बात की जाए। मैंने आज कहा है, बिजनेस कम्युनिटी को कहा कि चीन और जापान के ताल्लुकात की तारीख नावाकिफ नहीं हूँ, लेकिन चीन भी बदल चुका है और जापान की सोच में भी तब्दीली आ रही है। और मैं आपको दावत देने आया हूं कि आइए, ये जो सीपैक है, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये सिर्फ चीन और पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। मैं आपको टोक्यो चलकर दावत देने आया हूं, आए और आप उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपकी इन्वेस्टमेंट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम उसके मुहाफिज होंगे, हम उनका चौकीदारा करेंगे, नरेंद्र मोदी वाला करेंगे, पाकिस्तान चौकीदारा करेंगे और इंशाल्लाह आपका जो सरमाया है वो महफूज होगा एंड वी विल गिव यू अ गुड रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम इक़दामात उठा रहे हैं और इंशाल्लाह उसमें भी बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। तो मैं ये पैगाम लेकर टोक्यो आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे मावन होंगे, हमारे रहनुमाई फरमाएंगे, हमें गाइड करेंगे। नई टेक्नोलॉजी के मैं नए ज़ाब्तों की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी ऑफिस में कह रहा था कि मैं डिज़ाइन करा रहा हूँ एक नया ऐप, और वो ऐप होगा, उसका नाम होगा जैसे व्हाट्सएप का होता है ना ऐप, आपके पास होते इजीली आप अपने दोस्तों से, बच्चों से रब्ता कर लेते हैं, मैसेज कर देते हैं, क्लिप भेजते हैं, तस्वीर भेज देते हैं, एंड यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। आई एम डेवलपिंग दैट ऐप, और उस ऐप के जरिए फॉरेन ऑफिस का हर ऑफिसर डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकेगा। इट विल बी कॉल्ड फॉरेन मिनिस्टर डायरेक्ट। किसी दाएं बाएं के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपने कहना है डायरेक्टली मुझे कहेंगे और मैं सुनने की कोशिश करूंगा। I will try to the best of my ability and capacity to respond. हाँ, उसमें कुछ ऐसी वैसी बातें भी होंगी, उधर उधर कर जाऊंगा और जो कानून की बातें होंगी उनको पकड़ लूंगा और अपनी बेहतरी के लिए और आपके मुल्क की बेहतरी के लिए तो कर सकता हूँ। फॉरेन ऑफिस के अंदर हम इंशाअल्लाह बहुत से इस्लाहात लाने का इरादा रखते हैं और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी मेरी तरजीह है, क्योंकि जब तक कौम कौम पर खड़ी नहीं होगी आपकी खारजा पॉलिसी में वो ताकत आ नहीं सकती, आपकी आवाज में वो वजन नहीं आएगा। बेकारी को कोई नहीं सुनता, पंजाबी में रजियो यदि सारे सुन रहे हैं तो अगर आप अपने गांव पे खड़े होंगे तो दुनिया आपकी बात सुनेगी। इंशाअल्लाह एज फॉर मिस्टर पाकिस्तान इकोनॉमिक डिप्लोमेसी मेरी तरजीहात में से एक तरजीह होगी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान एक तरजीह हमारी है और उसमें हमारी ख़वातीन का रोल प्ले करते हैं, हमारी मईशत का, हमारी आबादी का आप निस्फ हिस्सा है, निस्फ हिस्सा है और वो कौमें तरक्की कर नहीं सकती जो अपनी आबादी के निस्फ हिस्से से मुस्तफीद ना हो। आज क्या वजह है कि आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में चले जाएं, आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, पहली दूसरी तीसरी सारी पोजीशन ख़वातीन ले रही हैं, क्यों ले रही हैं? एबिलिटी है तो ले रही हैं। तो हमारी ख़वातीन में बेपना सलाहियत भी है और हुनर भी है, शौक और शौक भी है और अल्लाह के फजल करम से आज उनके वालिदैन उस शौक को प्रमोट भी कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और उनको एतमाद दे रहे हैं और उस एतमाद से इंशाअल्लाह बनेगा नया पाकिस्तान। अब मुल्ज़िम कटहरे में हाजिर है इस मैम
Assalamualaikum, sir. If you have time to brief a second, what do you do? Yes, It I helps said, relate. my name is Dr. Arshia Qasim. I'm a neurologist. बहुत से बैरून मुल्क रहने वाले डॉक्टरों की तरह मैं भी पाकिस्तान में कुछ फिलांथ्रोपिक और एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करवाती रहती हूँ. एक चीज़ जो मुझे बारहा सुनने को मिलती है इल्ज़ाम और गिले के तौर पर, वो ये कि हम डॉक्टरों ने पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन कर दिया है और जो सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए हैं. उसकी बहुत सी माशी और मईशती वजूहत है जिससे आप बहुत बखूबी वाकिफ होंगे. मेरा सवाल आपसे ये है कि जब मैं या मेरे जैसे बहुत से लोग पाकिस्तान वापस जाकर इस अपनी खिदमात अंजाम देना चाहते हैं, इसके लिए हमें बड़े लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में से गुजरना पड़ता है जो कि हमारे अज़ाइम को थोड़ा डगमगा देते हैं. आपकी हुकूमत ऐसे क्या इक़दाम कर रही है कि जो नंबर 1 ब्रेन ड्रेन होने से रोके, दूसरा ये कि अगर हम जैसे कुछ लोग वापस जाना चाहें तो उनके लिए क्या कर रही है? बहुत शुक्रिया. डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि जो आप कर रही हैं आपने दुरुस्त किया. To bring a useful role here, to convey an effective role for Pakistan being in Japan and in Tokyo. आज मुझे कहते हुए कि कोई आर महसूस नहीं हो रही कि अपना जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इज अ ग्रेट लॉबिस्ट फॉर पाकिस्तान. पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, वो जाते हैं, उनके ताल्लुकात होते हैं. आज कांग्रेसमैन मुझे एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ. एक कांग्रेसमैन थे जो कि हमारी एम्बेसी के हाथ ही नहीं आ रहे थे, लेकिन वो एक डॉक्टर के मरीज थे और डॉक्टर पाकिस्तानी था. तो उस डॉक्टर ने कहा बात कुछ नहीं, मैं तुम्हारी कल मीटिंग कराता हूँ, तुम्हारा काम ठीक करा देता हूँ. उस डॉक्टर ने मुलाकात कराई, काम करवा दिया. किसने करवाया? डॉक्टर ने कराया. किसके लिए कराया? पाकिस्तान के लिए करवाया. एम्बेसडर का काम हुआ, डॉक्टर कामयाब हुआ. तो हमें आपकी जरूरत है, चाहे आप यहाँ हो या वहां हो. अब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई. मिसाल के तौर पर अल शफा हॉस्पिटल जो है इस्लामाबाद का, वो किसने बनाया? वो बैरून मुल्क रहने वाले डॉक्टर ने बनाया है. उन्होंने आके इन्वेस्ट किया है और आज एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया है. तो देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड पीपल लाइक यू टू कम एंड वर्क इन पाकिस्तान एट एकेडमिक स्टेज. हम क्या कर सकते हैं? हम 2-3 चीजें कर सकते हैं. एक, आपको रेड टेप से बचाने की कोशिश करें. दूसरा, आपको करप्शन से महफूज करें. अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको आप फैसिलिटेट करें. तीसरा, गवर्नेंस के जरिए और सिक्योरिटी के जरिए आपके कैपिटल को, आपके बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें. आप एक ऐसी एनवायरमेंट में आके रह सकें that you do not feel insecure. तो बाहर रहने के आदी हो जाते हैं उनको, चाहे पाकिस्तानी हैं, जब वापस घर लौटते हैं ना तो पहले 4 दिन उनका पेट खराब हो जाता है. क्यों होता है? इसलिए हो जाता है कि they live in a different environment. तो वो हम आदियों के पत्थर खाने के आप नहीं होते. तो इसलिए इंशाअल्लाह we will take steps to bring people like you back to Pakistan. मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी बेपनाह पाकिस्तानी बाहर बैठा है जो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है, लेकिन वो ये कर रहा है. पता नहीं मैं जाऊं तो माहौल कैसा होगा, मैं सिक्योर होऊंगा, लुट तो नहीं जाऊंगा, मेरे प्लॉट में कब्जा हो जाएगा, मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, मेरे प्लॉट पे आके काबिज हो गया, लेकिन मेरी पूंजी सारी लगी. तो इस किस्म की इनसिक्योरिटीज हैं, हमने उनसे बाहर निकलना है और इंशाअल्लाह निकलेंगे और आप लोगों को पाकिस्तान आने की दावत देंगे. जहां रहें, क्या कहता है, यहाँ रहें, वहां रहें, वहां आए. आप पाकिस्तानी हैं, हमारी जरूरत है. चल मेरा नाम इनाम हक है. मैं 31 साल से यहाँ टोक्यो में जापान में मुकीम हूँ, ट्राइडो में काम करता हूँ. इंतहाई अदब के साथ आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने 3 साल वाली बात की कि जिस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा 5 साल नहीं हो, तो यहाँ सफारतखाना पाकिस्तान में भी जब से PTI की हुकूमत आई है, यहाँ डॉक्टर असद मजीद खान साहब थे, जिनको आपने अमेरिका भेज दिया और ये पोस्ट आज तक गलती तो नहीं थी जी, गलती तो नहीं थी. उनको अमेरिका भेज की गलती तो नहीं थी. यहाँ ये सीट खाली है, तो जापान जैसे मुल्क के अंदर ये सीट इतना अर्सा खाली रहना जापान और पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है. जितनी जल्दी हो सके
اس سیٹ کو یہاں چلیے آج کی محفل میں فیصلہ ہو گیا، پاکستان واپس جا کر جاپان کے سفیر بھیجنے کا پہلا کام کروں. انسٹنٹ کافی، اسی کہتے ہیں انسٹنٹ سروس. جی سر. السلام علیکم سر، میرا نام غلام محمد ہے، میں ایم ڈی ہوں آرمی انٹرنیشنل کمپنی لمیٹڈ. سر میرا معزز آرمی انٹرنیشنل کمپنی. سر میرا معزز مہمان سے سوال یہ ہے، جو جاپان میں کافی عرصے سے غیر ملکی مقیم ہیں، وہ جب یہاں جاپانیز سٹیزن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو نارملی جب ان کی سٹیزن اپروول ہوتی ہے تو وہ ان کا جو فارن منسٹری ہے وہاں سے سرٹیفکیٹ لے کے سٹی آفس میں اندراج کراتے ہیں، ویری سیکنڈ ڈے وہ پاسپورٹ ایشو کرتے ہیں. انلیس ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے لیے یہ سہولت ہمارے سفارت خانے کی طرف سے شاید کوئی ہدایت دی گئی ہے جرمنی ہوم منسٹری کو کہ جب تک پاکستانیوں کو یہاں سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہ ملے جب تک وہ ان کو سٹی آفس میں اندراج نہ کریں. تو آج First of all, I am not aware of that. Let me understand. Is this so? Is this so? Maybe. Let me ask him. Truly, is this so? یہ بات کر رہے ہیں I have still the problem to understand what the issue is and how to resolve it. یہ فرمایا so مجھے نہیں معلوم، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. نہیں، ہم آخری طرف سے ایسی کوئی لایا بالکل بھی ایسا. I have to talk to Japanese foreign ministry سے اور انہوں نے بھی مجھے Okay, may I suggest, without going into debate, may I suggest you give this to me in writing. یہ آپ کو درکار ہے. I will take it up with the foreign office. Definitely I will give, sir. And I have one second more question, sir. جس طرح آپ نے بھی فرمایا اور خاص کر ہمارے جو عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن بھی ہے کہ سیاحت کو فروغ دینے کے حوالے سے. تو میرا کچھ تعلق ٹورزم سے بھی کچھ عرصہ پہلے سے رہا ہے، اور جس ملک میں ہم مقیم ہیں یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں سالانہ کافی لوگ باہر ٹریول کرتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمارے جو ایمبیسی کے اسٹاف ہے ماشاء اللہ وہ کام تو بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیوں نہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے بولتے بھی ہیں پاکستانی کلچر سینٹر کا قیام کیا جائے جس کا ڈائریکٹلی ایمبیسی کے بجائے آپ کے منسٹری سے ڈائریکٹ تعلق ہو، تو کسی بھی لیول پہ ہم ڈائریکٹ آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں جس سے ہمارے کو اس سے ہمارے ملک کو فائدہ پہنچے. سر اس میں دیکھیے بہت اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے ٹورزم کی بات کی. ہماری گورنمنٹ دیانتداری سے بلیو کرتی ہے کہ ٹورزم کا بے پناہ پوٹینشیل ہے. وی ہیو ٹو جسٹ شو کیس پاکستان. پاکستان خوبصورت ملک ہے، دنیا کو پتہ ہی نہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا ہے برا ہے، آؤ گے تو دیکھو گے. اب آنے کے لیے ہمیں امکانات پیدا کرنے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ جو پاکستان کا ویزے کے اپلائی کرے اس کو وہ رکھنا لگتا ہے، اس کو وہ رکھنا لگتا ہے. 36 جگہ سے گزرنا پڑتا ہے ایک ویزا حاصل کرنے کے لیے. ہم نے اس کو ختم کر دیا اور انشاءاللہ ہم جو نئی ویزا پالیسی لے کر آئے ہیں وہ ای ویزا فیسلٹیز اینڈ ویزا آن ارائیول. جاپان ان ملکوں میں سے ایک ملک ہے جہاں انشاءاللہ آپ کو ویزا آن ارائیول ملے گا. نمبر 2، ان سے بات کی ہے کہ بھیا آپ کی اپنی ٹریول ایڈوائزریز پر نظر ثانی کریں، اور انہوں نے اب کچھ فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اور مزید میں جب فارن منسٹر سے کل ملوں گا تو مزید کہوں گا کہ آپ اپنی ٹریول ایڈوائزری کو ریوزٹ کریں. پاکستان آج سیکیور ملک ہے اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو آنے دیں. اور تیسری چیز، ہم نے وہاں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک نئی ٹورزم پالیسی لا رہے ہیں. پچھلے دنوں میں ہم نے کانفرنس کرائی تھی جس میں انٹرنیشنل پارٹیسپیشن بھی تھی. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ٹورزم منسٹرز ہیں ان سے مل کر انوگریشن سیشن میں میں گیا تھا اور کنکلوڈنگ سیشن پہ پرائم منسٹر صاحب گئے تھے. اور ہم ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس انفراسٹرکچر کے ذریعے ٹورزم پروموٹ ہو. اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ 2 اسٹیپ اپروچ. پہلے گورا نہیں آئے گا لیکن وہ پاکستانی جو باہر رہتا ہے وہ آ جائے گا. ہماری خواہش ہے کہ ہم پہلے اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں اور پھر پاکستانیوں کو کہیں جو باہر رہتے ہیں جو خوشحال ہیں آپ ویکیشن لیتے ہیں. یو گو ٹو اسپین، یو گو ٹو انگلینڈ جو ملک میں رہتے ہیں، یو گو ٹو
डिफरेंट प्लेसेस, क्रिसमस की छुट्टियां हुई, बर्फ पड़ी है तो आप स्पेन चले जाते हैं, माफिया चले जाते हैं, तो क्यों ना आप 2020 को पाकिस्तान डेस्टिनेशन का प्रोग्राम बनाए। इस साल हमने छुट्टी तो करनी है, तो हम इस साल छुट्टी बच्चों के साथ पाकिस्तान करेंगे। फायदा क्या होगा? फायदा होगा अपने मुल्क में आएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, और पाकिस्तान का फायदा क्या होगा? आएंगे, होटल में ठहरेंगे, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, कोई शॉपिंग करेंगे, तो $4 पाकिस्तान में खर्च करेंगे तो पाकिस्तान को फायदा होगा। तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ, और उसके लिए हम एक मनसूबाबंदी कर रहे हैं और उसको प्रमोट करने के लिए, और जापान के लिए खासतौर पे एक मैंने बैठकर एक प्लान बनाया है, और क्या साहब तशरीफ फरमा है, उनकी इस बात की गवाही देंगे कि यहाँ बुद्धिस्ट टूरिज्म का एक बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है, और पाकिस्तान इज द सेंटर ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन, और यहाँ से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं बुद्धिस्ट को जो हाई एंड टूरिज्म में बिलीव करते हैं। They have the money to go and spend and see the various stupas that exist in Pakistan, and both stand to gain. So we are already planning on these things. वक्त थोड़ा लगेगा, लेकिन हम already काम कर रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा बीफ रखे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। ये बुजुर्ग रहे हैं जी। मेरा नाम, अगर आप मेरे बच्चे हैं तो मैं बुजुर्ग मेरा नाम रईस सिद्दीकी है और 32 साल से हमारे FR मिनिस्ट्री के साथ में कन्वर्सेशन, और हम आपके 32 साल से फॉरेन मिनिस्ट्री कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, थके नहीं क्या? नहीं जी। तो असल बात ये है कि वो आपका बहुत अरसे से इंतजार कर रहे हैं, ये पिछली दफा आपने कैंसिल कर दिया, तो उस वक्त जो बात है वो प्राइम मिनिस्टर का बताएगी। दौरा मैंने कैंसिल नहीं किया था, नरेंद्र मोदी ने परवाना कर दिया था जी। वो जो भी कुछ हुआ, लेकिन हमारी जो बहस है प्राइम मिनिस्टर की आप बात कोई है, क्योंकि लड़ना तो फौज अगर जंग भी चल जाती तो फौज में लड़ना आप नहीं लड़ना। बड़े मियां आप सवाल करें, अगर मैं वहां से गैर हाजिर होता ना तो सबसे बड़े नकात आप होते। सवाल करें, सवाल करें, आपके लोग आपने मामला और उसके हवाले से बात की ये है कि हमने पहले आपके आने से पहले या मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ बात करके व्हाट इज द क्वेश्चन? सवाल करो भैया, सवाल नहीं सवाल करें, बात का मौका नहीं है, सवाल करें, सवाल ठीक है। कल प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर सवाल ये है कि आप एजेंडा है पहले एजेंडे के बड़ी हम करिए, हमने जो सवालियां दी हैं टूरिज्म को दुनिया से खत्म करने के लिए, जो कवालियां दी है उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डायमंड हुई है और हमारे लोग भी शहीद हुए हैं। तो उस सिलसिले के अंदर आप बात करके ऊपर ये जोर दे कि हमें फाइनेंशियली भी और मॉरल भी एक तो सपोर्ट देना है। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि प्रमोशन, यानी प्रमोशन ऑफ नॉट ओनली ये सियाहत हो ये, बल्कि इसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री में जो है वो जो बहुत पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल करने के लिए आपकी क्या ये है क्योंकि वक्त होगा? जी आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल तशरीफ रखिए आप, बिल्कुल कुर्सी खाली नहीं छोड़ते अपनी अच्छा आपने दो बातें की कि जो हमने कुर्बानी दी है, बिल्कुल आपने बजा कहा, आपने कुर्बानी दी है और इंशाल्लाह मैं कोई आदत करूंगा। और दूसरी आपने कहा कि हम किस तरह हम प्रमोट कर सकते हैं, कितनी बना सकते हैं, तो आपको एक थोड़ी सी मिसाल और देता हूँ कि हमने आकर एक इनिशिएटिव लिया है और हमने फैसला किया हमारी हुकूमत ने कि हम करतारपुर की राहदारी खोलेंगे। उस एक फैसले से आपको अंदाजा नहीं है कि दुनिया भर में कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, जहां चले जाएं आप आज सिखों से राब्ता करें और वो पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा
ایک ہم نے ایک سیلاب انشاءاللہ ایک سیلاب آئے گا انشاءاللہ نومبر میں جو وہاں سے سکھ آئیں گے کرتارپور کی گرودوارے کی اپنی وہ اپنا درشن کے لیے. تو اس سے گڈ ول بھی جنریٹ ہوگا, اس سے ٹورزم بھی ریلیجیس ٹورزم بھی پروموٹ ہوگا. اور ہمارے پاس اور بھی بہت سی سائٹس ہیں جس کو ہم ریلیجیس ٹورزم کو پروموٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ جو بہتری ہو سکے کریں. سر جی آپ کیا جی السلام علیکم. میرا نام جاوید احمد ہے. آٹوموبائل سے میرا کاروبار شروع کرتا ہوں. سر آج کس کاروبار سے؟ آٹوموبائل. سر آج جو پاکستان کی معیشت کا حال ہے اس میں پاکستان بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. جیسا کہ یو اے میں ہم نے کیا آٹو فری زون میں جو پچھلی حکومتیں آئی ہیں نون کی پیپل پارٹی کوئی بھی ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ کیوں نہ آپ پاکستان میں ایک آٹو فری زون بنائیں جس سے میں آپ کو ایک انڈسٹری نہیں ہر انڈسٹری اس میں انوالو ہو گئی. کتنے سے لوگ آئیں گے اور ابھی یہ ٹیررزم اس میں بالکل میچ چل گئی ہے. میری ریکویسٹ ہے آپ سے اس کی پوری سیکورٹی بنی ہوئی ہے. اس میں شاہ نے بہت ہیلپ کی ہماری. تو آپ اس میں ٹائم دیں موقع دیں اور آئی ایم شیور دیٹ آپ گروتھ اتنی اچھی جائے گی اس میں. صرف فری میں ری اسپورٹ کے لیے کہہ رہا ہوں آٹو فری زون فار ری اسپورٹ نہ فار یوز پاکستان. میں ریکویسٹ کروں گا ایک میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو آپ نے پرپوزل آپ کا ہے لکھ دیجیے گیو اٹ ان رائٹنگ مجھے دے دیں تاکہ ہم اس کو سینڈ کر سکیں انڈسٹریز والوں کے ساتھ کامرس والوں کے ساتھ انویسٹمنٹ والوں کے ساتھ ڈسکس کریں. ان رائٹنگ چیز آ جاتی ہے ریکارڈ پیسہ بن جاتی ہے. ایک پلیز مہربانی کروا کے. نمبر 2 آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی آج صبح کی میری نشست ہوئی اس میں مجھے جاپان کی وزارت خارجہ سے یہ عندیہ ملا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے. اور فیصلہ کیا کیا ہے کہ وہ جاپان آج سوچ رہا ہے ایک پالیسی ڈیسیژن لے رہا ہے کہ وہ اپنی آٹو موبائل انڈسٹری کو ریلوکیٹ کرے پاکستان اور وہاں ریلوکیٹ کرے وہاں مینوفیکچر کرے فار ایکسپورٹ پرپزز into the Middle East and to other countries. تو پاکستان انشاءاللہ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ جاپان کی آٹو موبائل انڈسٹری کا ایک ہب بننے والا ہے. اس کے امکانات موجود ہیں. تو آپ انشاءاللہ یہ بات مائل تک پہنچے گی. آگے سامنے آپ لے لیں اس کے بعد آپ لے لیں. السلام علیکم. شکریہ بہت بہت ٹائم دینے کا. نئی مالائی نام ہے میرا اور گاڑیوں کے کام سے ریلیٹڈ ہے. تقریباً جاپان میں 90% لوگ گاڑیوں کے کام سے ریلیٹڈ پرانی گاڑی ایکسپورٹ کرتے ہیں. جنوری سے پاکستان کے اندر قانون SRO آیا ہے ان کیش سرٹیفکیٹ گاڑیوں امپورٹ کے حوالے سے پرانی گاڑیوں کی امپورٹ کے حوالے سے جس کی وجہ سے گاڑیوں کی جو یہاں سے ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 0 کے برابر ہو گئی. جو اربوں روپیہ ریونیو وہاں پہ کلیکٹ ہوتا تھا وہ بھی 0 ہو گیا. اور اس کے ساتھ جتنے ریلیٹڈ لوگ کاروباری لوگ تھے وہ بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ وہاں جو آٹو موبائل بیٹھی ہوئی ہے جیسے سوزوکی ٹویوٹا وغیرہ انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے کہ اب جب سے گاڑی کو کیش سرٹیفکیٹ کا آیا ہے اس کے بعد سے گاڑی بھی وہاں 4-5 لاکھ روپے جو ہے مہنگی کر دی ہے. تو اس کے لیے چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ہمارا بھی خیال کریں. السلام علیکم سر. میرا نام ندیم پاشا ہے. میں 25 سال تقریباً دبئی رہا ہوں. تو ہم لوگ PTI کے ڈائی ہارڈ قسم کے فین ہیں. میں لندن میں تھا پوری فیملی کو لے گئے ٹکٹ خرچ کر کے صرف بورڈ کے لیے. میرے ہلکے میں شفقت محمود تھے اور مناس وہ تھے. ہم بیٹیوں کے ساتھ میں ووٹ ڈالتے ہوں. سر سیم ہمارا یہی پرابلم ہے. ہم دیکھ کے بھی لائے ہوئے تاکہ آپ کو یاد دہانی بھی رہے کہ یہ گاڑیوں کا جو یہ مسئلہ. پہلی بات یہ ہے آج صبح سے ملنے سے پہلے میں ہمارے ایمبیسی کے اسٹاف سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں پاکستان کی تعداد کیا ہے کس شعبے سے تعلق ہے. تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 80-85% لوگ ایسے ہیں جو آٹوموبائل انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں. ان کا کاروبار کا ذرائع معاش کا طریقہ یہ ہے. تو پہلے تو میں
इंडिविजुअल्स को इससे आगाह। नंबर 1। नंबर 2, ये क्यों हुआ, आप अपना प्रपोजल दे दीजिएगा, उसको मैं एग्जामिन कर लेती हूँ। अब नया बजट बनेगा, उस बजट में हमारे अपने नए आए हैं एडवाइजर ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स पाठा साहब, मैं उनसे 25 तारीख को इंशाल्लाह बीजिंग में मिलूंगा, तो मैं उनको आपका मरासला ज्ञानदारी से उनके हाथ में दूंगा। देखिए हमें देखना ये है कि एक जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसके तकाजे हैं, वो कहता है कि हमने यहाँ के इन्वेस्टमेंट को मूव की है, जॉब क्रिएशन की है, तो अगर बाहर से आप सडन नई गाड़ियाँ मंगवाते रहेंगे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट हो जाएगी। ये उनका चला जा रहा है। बहस नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ देखिए तस्वीर के 2 रुख है ना, एक रुख है तो आप दिखा रहे हैं और सही दिखा रहे हैं, एक उनका रुख भी है, तो हमको तो वो दोनों का सुनना पड़ता है। एक वो कहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट तो पास होती है, नंबर 1। नंबर 2, वो ये भी कहते हैं, एक बात आपका ये भी है कि जब ये गाड़ियां वहां आती थी तो एक स्कीम के तहत आती थी और कुछ लोगों ने उस स्कीम को मिसयूज किया और तजावुज किया। ये भी है कि बहस है, मैं तो नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हमें देखना ये है कि किस तरह हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि आपका कारोबार भी चल सके और मुल्क की मईशत को नुकसान भी ना हो। अरे इस तरफ इनको देख के इधर इस तरफ आ जाइए, सर अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सर स्वालिह मुस्तफ़ा है और मैं तकरीबन 30-31 साल के जापान के अंदर हूँ और मैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का काम करता हूँ। तो सर मेरा सवाल ये है कि अभी जो टूरिज्म के बारे के अंदर आपने बात की है, तो सबसे पहली बात ये कि पाकिस्तान के अंदर जो भी बाहर से लोग आते हैं, हमारे ट्रैफिक का सिस्टम सर इतना खराब है कि वो एयरपोर्ट से उतर के सबसे पहले रोड पे निकलते हैं और उनको पता लग जाता है कि ये इंतहाई तहजीब किस्म के लोग हैं जिनको गाड़ी चलाना नहीं आता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट सर ये है कि लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले वहाँ पे ड्राइविंग स्कूल बनाइए जिनको खुद को भी आता हो। नंबर 2 बात सर कि टॉयलेट का सिस्टम हमारे यहाँ इतना बेकार सिस्टम है कि अगर टॉयलेट खाने का सिस्टम तो वहाँ पे मौजूद है, निकालने का कोई सिस्टम नहीं। आपने कर दिया है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के साथ दफ्तर खारजा का ये काम ही है। सर आपके जापान में वेलकम। मेरा नाम नासिर नागागावा है, मैं जापान में 21 ईयर्स से मुस्लिम हूँ और यहाँ की अदालतों में और पुलिस में और कोर्ट वगैरह में इंटरव्यू हूँ और मेरा उर्दू नेट जापान ऑनलाइन न्यूज नेट भी है जो पिछले 10 साल से चल रहा है और मैं राइटर भी हूँ, मैं 3-4 किताबें शायद कर चुका हूँ। ये किताब आपके लिए लेकर आया वो दूंगा। वैसे सर आपका ना तो कोई सवाल है ना ही आपके लिए तजवीज़ है, सिर्फ एक मसला है की तरफ हम तवज्जो बदल कराना चाहूँगा जो कि नासिर जापान में बल्कि पूरी दुनिया में हमारे जहाँ जहाँ पाकिस्तानी होगी वो उससे 2 चार है। वो ये कि जब से 3-4 साल से जब से यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ है उसमें शादी का जो है अभी वैसी तरह की नहीं थी। अब जो लोग यहाँ पे 20 साल से 25 साल से जो रह रहे हैं या 20-25 हज़ार पाकिस्तानी रह रहे हैं यहाँ पे जापान में, उनके लिए उन्होंने कहा कि ये ऑनलाइन अप्लाई करें आप। अब चंद लोग तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या दूसरे लोगों के उनके दोस्त वगैरह अप्लाई कर देंगे, लेकिन वो लोग जो ये अपने साइन भी नहीं कर सकते वो कंप्यूटर पे ऑनलाइन कैसे करेंगे? उनके लिए सिर्फ एक हल है तो सिर्फ पाकिस्तान जाए और जाके से अपना शादी का वहाँ से बनवा के लाए, फिर अपने पासपोर्ट को ऑनलाइन अप्लाई करें। इसी तरह जापान में ओकिनावा और होक्काइडो जो एक कोने से दूसरे कोने तक 1200-1300 किलोमीटर का फासला है। अब होक्काइडो में जो लोग भी है और उनके बच्चे पैदा होते हैं उनका सीआरसी बनवाने के लिए पहले एक दफा एम्बेसी आना पड़ेगा। चलो ठीक है, एम्बेसी नहीं आते बना के इशू करके दे देते हैं, लेकिन जब उसको अपना पहला पासपोर्ट बनवाना है उसको मस्ट अपने बच्चे के साथ अपनी बीवी के साथ उसकी एम्बेसी आना है। और ओकिनावा से आपको पता चले कि होक्काइडो से जापान की लोगों की एम्बेसी आने के लिए कम से कम $1000 चाहिए। सर ये मसाइल जो सिर्फ जापान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ हमारे पाकिस्तानी लोग हैं वो इसे 2 चार है। ज़्यादा इसको मतलब कंसिडर कीजिए और ताकि ये मसला हल करें ताकि हम लोग खुश रहें। आपको वो $1000 खर्च करेंगे जाके पाकिस्तान जाने के लिए तो हम यहाँ से भेजना चाहेंगे ताकि पाकिस्तान तरक्की करें। थैंक यू सो मच। जब तक नादर से ताल्लुक था तो आसानी थी, नादरा को बाहर आपका मसला जरूर है और ये और जरूर से भी इस किस्म की दिक्कत आई है सामने।
लेट्स लुक एट इट कि ये जेन्युइन मसला है, इसको हल कैसे किया जाए। ये भी आप अगर दे दें साहब को दे दें तो इनसे और फिर डिस्कस करते हैं दादा के साथ कि इसका कोई हल निकालेगा। ये प्रैक्टिकल बात है और हर आदमी को रोजगार होना पड़ता है, तो उसके लिए बरतानिया में भी है और देखो भी शिकायत आई है उसका हल सोच के क्या किया जाए। एक सवाल दूसरे दो प्रोटेक्ट इसमें हमारी जो फ्रेंड्स हाल है वो कहाँ है, इसमें थोड़ा सा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है पाकिस्तान और जापान, इसमें शायद ये नहीं आता, तो इसके लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान और जापान फ्री ट्रेड में। नंबर दो, आपने जब अपनी एग्रीमेंट डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है और जापान है बिगेस्ट कंट्री है, तो ये बात सही है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल इस तरह से दूँ कि मैं जापान में 17 साल से रह रहा हूँ, 17 साल से जेम्स स्टोन से लगे हूँ। हमारी कंट्री का जो नेचुरल रिसोर्स है जेम्स स्टोन है, ये इतना नायाब और इतना खूबसूरत है कि इसकी दुनिया में इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि जिसका पता नहीं है। और जापान में इसको इस वजह से पसंद किया जाता है कि वो पाकिस्तान से, अगर वो स्टोन पाकिस्तान से ना हो, किसी और कंट्री से मिलता हो, उसकी शायद कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी कंट्री में जो जेम स्टोन्स नहीं निकलते हैं, नई सोर्सेज आती हैं, उनके ऊपर अगर हमारी एम्बेसी या आपके गवर्नमेंट लेवल पे एक्शन हो कंट्री को कंट्री एक रिप्रेजेंट हो कि इस कंट्री से जैसे कि हाल में कुछ कंट्री में 2-3 ऐसे स्टोन निकले जिनकी जापान में बड़ी अच्छी डिमांड भी है और बड़ा अच्छा उसको रिस्पेक्ट है। तो उसको प्रमोट करने के लिए अगर आप इसमें कुछ ऐसे बेहतर इकदाम करें कि जिससे पाकिस्तान इसमें हैज मेड इन पाकिस्तान आए कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये पाकिस्तान से मिलती हैं, तो आई थिंक ये वो हमारी कंट्री का एक बड़ा अच्छा उसमें नाम दिया गया है और उसमें हमारी कंट्री को इस लिहाज से उसको यहाँ पसंद किया जाता है, उसको बेहतर देखिए इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में क्वालिटी के एमरल्ड भी है, रूबीज भी है, लेकिन हमारा उनको निकालने का एक्सपेरिमेंट करने का तरीका बड़ा महंगा है। अभी भी हम धमाकों से उनको हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर की और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और वो हमें प्रमोट करना है, तो लोग आए और वहाँ इन्वेस्ट करें और उसको जेल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। हम उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको निकालने में, उसको स्क्रैप करने में और उसको कहते हैं ना उसकी नाविंग है, उसकी पॉलिशिंग है, उसका बनावट है, उसमें हम वैल्यूएशन करके उसको बात करेंगे तो पाकिस्तान में ज़्यादा फायदा होगा। हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी और देने की जरूरत है। इनके बाद आप बहुत शुक्रिया टाइम देने। मेरा सवाल ये है, सबसे पहले मेरा नाम जो है सुभान और मैंने जापान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मास्टर्स किया है तो टेक्नोलॉजी से, और उसके बाद मैंने PhD का क्लास किया है। मैंने एजुकेशन करियर के दौरान काफ़ी सारे कंपनीज के साथ मेरी मीटिंग हुई है, तकरीबन 50 कंपनीज के साथ मेरी मीटिंग हुई है, बहुत सी कंपनीज में मेरे इंटर्नशिप भी हुए हैं। तो अपने एजुकेशन करियर के दौरान मैंने ये महसूस किया कि मैं इधर जापान आया हूँ और जापान के कल्चर के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा है, जापानीज लैंग्वेज भी सीखी है, जापानियों के साथ किस तरह कम्युनिकेशन किया जाता है वो सब कुछ सीख लिया है। लिहाजा मैंने डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, इधर मेरे रहने का कुछ ना कुछ तो फायदा हो। जिस कंपनी के साथ भी मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान के बारे में बात करता हूँ, पाकिस्तान में उनकी कुछ ब्रांचेस ओपन करने के लिए बात करता हूँ, तो मुझे ये कह देते हैं कि आप इस तरह बातें करते तो आप हमारे साथ जॉब कर लीजिए।
لیکن میرا کام جاب کرنا نہیں ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کروں. لہٰذا اس سلسلے میں اس سے پہلے 2003 میں نے سوال میرا یہ ہے ابھی جو میرا سوال یہ ہے کہ میں کچھ کمپنیز کے ساتھ لاسٹ والی بات نہیں کرتا ہوں. میں نے کچھ کمپنیز کے ساتھ بات کی کہ میں آپ لوگوں کو پاکستان لے جا کر ادھر آپ کو انویسٹمنٹ کی جگہیں یا آپ کو سروس کرواتا ہوں اور آپ ادھر پاکستان میں بہت سی اپرچونیٹیز ہیں. آپ اگر اپنی برانچز کھولنا چاہتے ہیں, ویسے میرا فیلڈ جو ہے انرجی ہے. سوال میرا یہ ہے جب میں نے یہ پلان سارا بنایا 28 فروری کو ہمارا پلان تھا پاکستان جانے کا, ٹھیک ہے, تو اس طرح ہوا کہ میرے والد صاحب میں نے اس کو پہلے ادھر پاکستان بھیجا, انہوں نے ایم کیے, سب کے ساتھ بات کی. آپ نے گھر تو سنا ہے نا, سب کے ساتھ بات کی, کوئی سپورٹ نہیں ملا نا, کوئی سپورٹ نہیں ملا. پرائیویٹلی ہم نے اپنے لیے اوارڈ اس کو کیے. سپورٹ نہیں ملا آپ نے کس کو لکھا؟ ایک سیکنڈ سمجھ لیجیے, آپ نے کس کو لکھا؟ کسی کو لکھا, کس سے رابطہ کیا آپ نے؟ جی میری بات ہم ڈائریکٹلی آپ نے جواب دے, آپ نے کوئی خط لکھا, آپ نے ان سے رابطہ کیا, آپ بتائیں گے کہ میں اس کی طرف اب ہوا میں بات تو نہیں ہوگی نا. آپ بتائیں کہ میں نے خط لکھا انویسٹمنٹ کو, میں نے خط لکھا کامرس کو, میں نے اس سے رابطہ کیا, میری کس کی مدد دی تھی, تو پتا چل جائے گا نا کس سے رابطہ کیا. پاکستان چلا گیا, یہ کمپنی, یہ میرا بیٹا ہے, کمپنی کے ساتھ ہم نے باتیں کیے, اس سے 7 کمپنیاں تھی, اس میں سولر بھی تھا. میں نے جنید اکبر سے بھی بات کیا, جنید اکبر سے میرا تعلق مالاکڑ سے ہے, میں مالاکڑ کا رہنے والا ہوں. میں نے جنید اکبر کو کہہ دیا, اس نے کہتے کہ ان لوگوں کو مت لے آؤ, یہ لوگوں کو جاپانی کو مت لے آؤ. کوئی بھی نہیں, وہی ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں آپ نے امان کو بولا تھا کہ کیوں مت لے آؤ. وہ کہتا تھا کہ وہ سیکورٹی نہیں ہے, اس کو مطلب ہے کوئی. ابھی جو ہے نا جی, یہ کچھ کمپنیاں ہیں ہم میں پاکستان لے جانا چاہتے ہیں, ادھر وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, ایک وہ سولر میں وہ انٹرسٹڈ ہے. سنیں کمپنی کب لے کر جائیں, کمپنی میں آ جائیں, اگر آپ بندوبست کو لے کر جائیں گے, لوگ جائیں گے مایوس ہو کر واپس آئیں گے, وہ کہیں گے ہم لے گئے, ہمارا وقت ضائع کیا, کچھ نہیں نکلا, اس سے فائدے کے بغیر نقصان ہو جائے گا. آپ جانا چاہتے ہیں, پہلے اس کی پلاننگ کریں, منصوبہ بندی کریں, بتائیں کس محکمے سے آپ کو مدد ہے, اس محکمے کی نشاندہی کریں کہ اس محکمے پہ جانا ہے, ان کا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے ہمارا, اس سے آپ رابطہ کریں اور نہیں ہمیں بتائیں, ہم آپ کی ہیلپ کریں گے تاکہ آپ کی ان کے ساتھ انٹریکشن ہو. جانے سے پہلے تیاری کر کے جائیں, تیاری کر کے جائیں گے تو نتیجہ نکلے گا. تیاری کے بغیر جائیں گے, نیت آپ کی اچھی ہے لیکن اس اچھی نیت کے ساتھ پلاننگ بھی اچھی ہونی چاہیے. اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے, آپ کو مائک نہیں, آپ کو السلام علیکم. السلام علیکم. میرا تعلق مقام مظفر گڑھ سے ہے جی, آپ کے شہر کا رہنے والا ہوں. ہر سال ہمارے یہاں سیلاب آپ کی یونیورسٹی سے حقیقی ہے سوال کہ آپ نے کچھ ایسا کیا جو میرے شہر میں ہوتا ہے. برباد کر دیا تھا. شہر سے نا, شہر برباد ہوا, ایک تاریخی سے راستہ بند ہو گیا. اس کی بات 2010 کے بعد اس شہر کا سیلاب اور آج 2019 میں میرے پاس فیکٹس ہے نا, فکر بتا سکتا ہوں کہ کتنے ایم پانی دریا میں گیا. اس کو کہتے ہیں نا جانتے ہیں علاقہ ہے نا, وہ ایک علاقے میں پانی میں بتاؤں کیا تھا. اس میں مظفر گڑھ کے لیے سفر بنانے کے لیے حکومت نے پیسے رکھے تھے,
बदकिस्मती से मैं सारे समझेंगे असा पैसे रखे हैं सफर बंद बड़ा वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह उधर सरकार कितनी ईमानदार क्यादत है कि पैसा हराम कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आप ऐसे करें, आप ऐसे नहीं अच्छा ओके, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो फिर जल्दी आइए सर, लेकिन वेरी शॉर्ट जी सर। Assalamu alaikum sir and assalamu alaikum everyone. Thank you for coming today. I'm really admiring your personality. I just want to question on the हमारी जो बात है कि पाकिस्तान में वैरायटी ऑफ काम करते हैं और ड्राइवर को मैं भी जापान में 32 साल से हूँ। मेरा पार्टी के पीटीआई के हवाले से सवाल है कि पीटीआई ओवरसीज की जो तंजीमें हैं उनके हवाले से जो है कोई अपडेट्स वगैरह नहीं आती और ना ही उन्हें कोई लायबल बताया जाता है। तो इस पर जो है सिर्फ जो है कोई काम किया जाए ताकि ओवरसीज दोबारा से फाल हो सके और काम कर सके। और पिछले दिनों में मुझे याद पड़ता है कि जापान में ओवरसीज पीटीआई का एक कन्वेंशन था और लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, वही टेलीफोन पे मेरे से बात की सही है ना, मैंने बात की थी तो ऐसी बात नहीं है। आप थोड़ा फाल करने की जरूरत है, अब बात करेंगे इंशाल्लाह ताकि ओवरसीज जो पार्टी के देखिए पीटीआई एक ऐसी जमात है जिसको चलाता ओवरसीज पाकिस्तानी का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि डीप पॉकेट्स हमारी तो है नहीं, हमें तो पाकिस्तानी जो बाहर से डोनेशन भेजते हैं, डोनर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं उससे पार्टी करती है। थैंक यू फॉर डूइंग दैट एंड वी ट्राई टू स्ट्रीमलाइन इट फर्दर। सर मैंने सॉरी तो फिर मैं कह सकता हूँ कि तब्दीली आ गई। सर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, आपने सुना? इन्होंने कहा मैं वो शख्स हूँ जो हर बार बोलता है आज खामोश हूँ, मैंने कहा तब्दीली आ गई। सर जबान तब्दीली। सर मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है, क्या आप मुतमईन हैं और क्या हमें भी मुतमईन रहना चाहिए कि आजकल जो पोर्टफोलियो चेंज हो रहे हैं आप उसमें शामिल नहीं? एक सवाल मैं आपको जानकारी से कह सकता हूँ कि जो भी चेंजेस आए वो मेरे लिए उतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी जितनी आपकी। मेरा पोर्टफोलियो है पाकिस्तान की खिदमत करना, पौधा हो या ना हो। मैंने तहरीक इंसाफ पौधे के लिए ज्वाइन नहीं की थी, मैं तहरीक इंसाफ एमएलए बनने के लिए नहीं आया था, मैं तहरीक इंसाफ से पहले भी वजीर था, वजीर खारजा था, एमएलए था। जब पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था तब भी हम असेंबलियों में थे। मैं नया पाकिस्तान बनाने के लिए मेरा नाम ये इकरार है, ट्रैवल एजेंसी से मेरा ताल्लुक है। आपसे दो बहुत माना गुजारिशें। पहली चीज ये कि पीआई जापान में बंद हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी चांस है दोबारा शुरू होने का। जापान में उन्होंने सारा वर्कआउट कर दिया है। चाइना जो है वो हमें स्लॉट की जगह नहीं दे रहा पीआई को। जब आप चाइना जाएं उनसे गुजारिश है आपसे उनसे इस बात को पॉइंट आउट किया जाए कि पीआई को वहां पर लैंडिंग के लिए और स्लॉट के लिए जगह दी जाए। आपने सही कहा कि ये एजेंसी थी बंद हो गई, उसकी वजह ये थी कि जो छोटा था वो कम था, 1300 का था, अब नया मुआहदा हो गया है, उस तादाद को 4000 तक बढ़ा दिया गया है। जो फ्रेट था वो 43 टन था, उसको कार्गो था उसको 150 टन कर दिया गया। We Pakistanis, we cannot be applying China visa from any country of the world except Pakistan. मैं जापान में परमानेंट रेजिडेंस हूँ।
मैं जापान में परमानेंट रेजिडेंट हूँ, मैंने अगर चाइना जाना है या जितने भी मेरे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं इन्होंने चाइना जाना है, दे मस्ट बी गो बैक टू पाकिस्तान एंड अप्लाई चाइना वीजा इन पाकिस्तान। तो आप क्या यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं? नहीं सर, फिजिकली जाना पड़ता है, फिजिकली एम्बेसी। ये तो वाकई प्रॉब्लम। तो प्लीज इस पे भी जरा आप उनके साथ पॉइंट रखिए, बहुत बुरा है सर। थैंक यू बड़ा मुनासिब पॉइंट है, बड़ा मुनासिब पॉइंट है। हर बंदा कैसे चाहे पाएगा, लेट्स फाइंड अ वे, लेट्स फाइंड और इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर से मैं काम करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन सर इसका जवाब देने के लिए इसका जवाब देने के लिए पहली बात ये कि ग्रे लिस्ट में कब आए, ग्रे लिस्ट में आए तो भूले और सब ग्रे लिस्ट क्या लग रहा है। हमने इस गवर्नमेंट ने आपके साथ इकदाम उठाए हैं कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर हों। हमने जनरल फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इकदाम उठाए हैं, उठा रहे हैं। 15 अप्रैल को हम उनको जो अपना ग्रुप है उसको अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमें टेक्निकल ग्राउंड पर जांचेंगे। हमें एक खदशा जरूर है कि उनका उस ग्रे लिस्ट को जांचने के लिए एक कोचेयर हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में देखना चाहता है। हमने सब देखा है प्रेसिडेंट को कि हिंदुस्तान को उसमें नहीं होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो उनका तो एक खुला खुला एजेंडा है, तो उसमें हमारी कोशिश बाहर आए। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि क्या पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी रखने के लिए उर्दू जबान कौमी जबान की तरक्की व तरक्की के लिए जापान में स्कूल खोलने का या बच्चों को तालीम करने का, पाकिस्तानी तालीम देने का आपके प्रोग्राम में ये है या नहीं है, ये एक सवाल है। इसका जवाब आज पाकिस्तान के अंदर भी खरीदी रोल एजुकेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। अगर इसमें अट्रैक्शन है तो प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, हो सकता है और बहुत से लोग दिलचस्पी ले सकते हैं। गवर्नमेंट के पास मसाइल नहीं है कि जगह जगह स्कूल खोले। सर दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक तो हमारा कम्युनिटी का मसला है कि जनीवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के न होने की वजह से लाइसेंस के लिए पाकिस्तान का जापान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बाकी लोग सही तो इसमें सर एक थोड़ा सा वो करते हैं कि हम हमारी कम्युनिटी जो है वो इजी हो जाए जब ठीक है। ये बुजुर्ग जनाब एक बहुत आसान से बात पूछनी है आपसे, सब पूछना है। एक मुझे 35 साल हो गए जापान में रहते हुए और मैंने यहाँ पे सिर्फ ये चीज देखी है। जी सवाल ये है कि जापान में आइंदा एम्बेसडर जो है वो जापानी बोलने वाले आप पाकिस्तान में तैयार किए हैं या नहीं किए हैं? ये कहते हैं मुझे जापानी बोलने आती, मुझे लगा हमको लगा है, हमको हक बोलता है। सर मेरा नाम और मैं यहाँ पे पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन प्रेसिडेंट। सर मेरा आपसे सवाल है, आपने बात की सिविल सर्विसेज की कि हमारी जो ड्रीम है वो सिविल सर्विसेज में नहीं आ रहा, तो सर आपकी हुकूमत इस बारे में क्या कर रही है?
हम कोशिश कर रहे हैं कि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लेकर आए और गवर्नेंस को इम्प्रूव करें और लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें ताकि अच्छे लोग सिविल सर्विस में आए। सर कैसे रिफॉर्म्स के जरिए ना, बाय restructuring the civil service, making it more attractive, giving them protection so that people come, the talent come into civil service. ठीक है, मार्केट वेस्ट क्यों आखिरी क्वेश्चन क्या करके बताए, वो पहली बात हो गई है, वो जो किया काम कर रहे हैं उसके हमें डिस्कशन भी किया दिखाना चाहिए। अस्सलाम सर, मेरा नाम है पेशी और मैं पाकिस्तान से ना गुजरात से बेसिकली पता करता हूँ। तो हमारे गुजरात में ना सवाल कर बेटा, सवाल ये करने लगा हूँ, उधर स्टूडेंट जो है वो अपनी जिंदगी वगैरह बना के रखते हैं कॉलेज के अंदर ना, MSF वगैरह इस तरह की। तो इससे ऊपर कोई हेडकम बेसिकली ऐसी चीज होनी चाहिए कि ये जो फ्लास्टर वगैरह गुजरात के अंदर हो रही है। सवाल क्या है, गुजरात का सवाल गुजरात करेंगे, जापान की बात करेंगे। और उसके अलावा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो फीडबैक मांगने वाले जो बेसिकली स्टूडेंट वगैरह हैं और जो बेरोजगार यूथ है उसको कारोबार में इजाफा मिलेगा। तो सरकारी मुलाजिम से सीपैक के लिए सरकारी की जाएगी और हमारा बाबर साहब, बाबर भाई मैं सारी कम्युनिटी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप